Okay. So, once again, very good morning to all of you. And we discussed yesterday the investment objective and investment attribution, right? And today we are going to discuss investment plan and taxation of investment, right? So, these are the two topics we are going to have a discussion on today. But before moving further and starting a new topic today, I just wanted to know from you people that what is investment objective? What are the investment objective and what are the investment attributes? You may write down in the chat or you may speak up. Let us start with Ma'am, growth growth. You're talking about investment? objective, Yeah, bull. Growth, then tax exemption, tax exemption, good. That's why I always want you people to take notes while I'm discussing, right? Let me tell you, the objective of investment can be growth, safety, right? The future income and the tax exemptions. These four can be objective of any investment you want. Um, it can be for growth, it can be for the regular income, it can be for safety, and they want tax exemptions. And attributes are risk, return, tax, liquidity, liquidity, and the convenience, right? So, convenience. yes, so these are the five attributes. Now, moving forward to know that taxation, investment tax, right? We are going to discuss classification or types of investment tax. But before that, can you tell me what is an investment tax? Can you tell me there is any relationship between investment and tax? Of course, it is there, right? Then you will have to tell me that how investment and tax are related. What's your understanding on it? What's your understanding on it? I want your discussion. I want this class to be interactive class. So if you can tell me whenever you do, see what I'm asking is कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या हम टैक्स के बारे में सोचते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स सोचते हैं. तो कौन सी कैसे सोचते हैं? Tell me. How we will thought of it? आप समझ रहे हो मैं क्या पूछ रही हूँ? And I know you people have something to share on this, and I want you to be interactive in this class. इन्वेस्टमेंट और टैक्स का क्या लेना देना है? अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप सोचते हो ना कि टैक्स कितना होगा. पहले तो क्या सोचते हैं कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, पहले तो आई हैव अ सेविंग्स, राइट? हम इन्वेस्टमेंट तभी कर पाएंगे व्हेन वी हैव अ सेविंग्स. सो सपोज मेरा सैलरी आया और मुझे उसमें से जो भी वो है, हम क्या बोलते हैं उसको, हमने जो इनकम किया उसमें से हमारे एक्सपेंसेस हमने निकाले, उसके बाद जो बचा वो सेविंग है, और हम 3-4 महीने का एक्सपेंस एज ए सेविंग के तौर पे रखते हैं. एंड जो अदर थिंग्स आर देयर उसको हम इन्वेस्ट करते हैं हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव के साथ. कुछ पैसों को हम सेफ्टी के लिए डालते हैं, राइट, सेफ रखने के लिए. कुछ पैसे को हम ग्रोथ के लिए डालते हैं, कुछ पैसे को हम फ्यूचर इनकम जनरेट करने के लिए डालते हैं, और कुछ को हम टैक्स एक्सेम्पशन के लिए इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है ना? तो जब हम इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, पहले तो हम इन्वेस्ट क्यों करेंगे? क्योंकि अगर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो उस सब पैसे पे टैक्स देना पड़ेगा, है ना? तो हम सोचते हैं कि मुझे फ्यूचर इनकम भी तो चाहिए, मेरे पास इतना एक्स्ट्रा पैसा है, मैं क्या करूंगा या करूंगी, तो वी इन्वेस्ट इट, राइट? इन्वेस्टमेंट के बाद क्या होता है? जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो इन्वेस्टमेंट आपको 2, 3, 4, 5 साल में रिटर्न मिलता है ना? तो जब इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न मिलता है, जब आपको इन्वेस्टमेंट जितना किया था उससे आपको
5-7% ज्यादा जो पैसा मिलता है, 10% भी मिलता है, कभी कभी 15% पे भी मिलता है, तो उस पे टैक्स लगता है ना। तो लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके बारे में भी सोचते हैं, है ना। आपने कहीं ना कहीं तो ये टैक्सेशन आपका आया होगा, तो पढ़ा होगा। एक आपको कैपिटल गेन का पता है? कैपिटल गेन टैक्स होता है, आपका जो कैपिटल गेन होता है उस पर टैक्स लगता है। long term capital gains and short term capital gain, yes, long term capital gain and short term capital gain, आप अग्री। तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में बाद में बात करेंगे। कैपिटल गेन क्या है? व्हाट इज अ कैपिटल गेन? व्हाट इज अ कैपिटल गेन? what you will consider as capital gain? आपको पता है कैपिटल गेन क्या होता है? हाँ, अभी वो टैक्स नहीं है भव्या, अभी वो टैक्स नहीं है। अभी क्या है, आपने एक असेट लिया था, कैपिटल असेट, है ना। उस कैपिटल असेट को जब आप सोल्ड करते हो, हाँ, कैपिटल असेट को सेल करने के बाद उसकी जो परचेज वैल्यू से जितना भी ज्यादा वैल्यू आपको मिला है ना, दैट इज योर कैपिटल गेन। जैसे मैंने एक लैंड खरीदी थी 10 लाख रुपीस की, है ना, 10 साल पहले 10 लाख रुपए में मैंने एक लैंड खरीदा था। अभी आई एम सेलिंग इट, तो आई एम अर्निंग 50 लैक्स फ्रॉम दिस। मुझे वो अभी जो जमीन मैंने बेची, जो प्लॉट मैंने बेचा, उस पर मुझे 50 के मिले हैं। तो वो खरीदा था मैंने 10 लाख में, बेचा मैंने 50 लाख में, तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ? 40 लाख का। परचेजिंग प्राइस को माइनस करके, लेस करके, डिडक्ट करके जो प्राइस बचता है, दैट इज योर कैपिटल गेन, राइट। एंड दिस कैपिटल गेन इज टैक्स्ड। अच्छा, और कौन कौन से अच्छा, मैंने बोला कि कैपिटल असेट में जब आप सेल करते हो तो कौन कौन से कैपिटल असेट को कंसीडर करोगे आप? कौन कौन सी चीजें जो हम कैपिटल असेट में कंसीडर करेंगे? आई होप यू आर मेकिंग नोट टुगेदर एज वेल। देखिए, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, रेसिडेंशियल हाउस लिया, फ्लैट लिया, व्हीकल लिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, या फिर आपने गोल्ड लिया, याद रखना, ज्वेलरी, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल असेट्स दैट कैन बी कंसिडर्ड एज कैपिटल असेट्स, राइट। कुछ चीजें हैं जिसको आप कैपिटल असेट में कंसिडर नहीं कर सकते हो, राइट। जो आपने फर्नीचर लिया है, जो ज्वेलरी ली है आपने पर्सनल यूज के लिए, दैट इज नॉट अ कैपिटल असेट, है ना। तो सब ऐसे ही बताएंगे कि ये गोल्ड हमने पर्सनल यूज के लिए लिया है, इवन दो यू आर इन्वेस्टिंग इनटू इट, राइट। अच्छा, एग्रीकल्चरल लैंड पे ये लागू नहीं होगा। एग्रीकल्चरल लैंड आप जितने भी में भी बेचो, आपको जितना भी कैपिटल गेन हो, यू विल नॉट पेइंग एनी टैक्स ऑन दिस। आपका स्टॉक या पॉन्स है, वो कैपिटल असेट नहीं है, राइट, तो उस पे आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, है ना। और ये था हमारा नया निकला है वो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, है ना। वो गोल्ड सोवरेन बॉन्ड होते हैं, उस पे भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है, राइट। तो कैपिटल गेन किस किस चीजों पे लगता है? बिल्डिंग, लैंड, हाउसेस, व्हीकल्स, म्यूचुअल फंड्स एंड ज्वेलरी। बट ज्वेलरी अपने इन्वेस्टमेंट या फिर इस तरह से ली है, अगर आपने वो पर्सनल यूज के लिए लिया है, तो इट देयर वोंट बी एनी कैपिटल गेन कंसीडर्ड देयर, है ना। तो ये है। अच्छा, अभी अभी आप क्या करते हो? कैपिटल असेट में इन्वेस्ट करते हो एंड देन यू सेल देम। तो जब आप सेल करते हो तो आपको जो एक्स्ट्रा चीजें मिलती है, सॉरी, जो एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है, उस पे आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना होता है। और कैपिटल गेन टैक्स दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, राइट। आई होप यू आर मेकिंग नोट्स। पहले हमने क्या लिखा? व्हाट इज अ कैपिटल गेन? कैपिटल गेन is profit earned from selling any capital asset. कैपिटल असेट में क्या क्या कंसीडर होगा? लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स, गोल्ड जो आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिया है, राइट, एंड व्हीकल्स, म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स, ठीक है, उस सब में कैपिटल गेन लगेगा। कौन सी चीजों पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा? अगर एग्रीकल्चरल लैंड है तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। दूसरा, किसी ने आपको गिफ्ट किया है ना, ये आप खास नोट कीजिएगा आपके नोट्स में। किसी ने अगर आपको कुछ गिफ्ट किया है
है ना, किसी ने जैसे आपको कुछ इनहेरिटेंस मिला है, राइट, जैसे मेरे पापा के पास एग्रीकल्चरल लैंड थी एंड ही पास्ड ऑन टू मी। जैसे मेरे पापा के पास एक घर था, वो मेरे पास मुझे सक्सेशन में मिला है, ठीक है। तो इस चीज को जो आपको गिफ्ट में मिला है या इनहेरिटेंस में मिला है, उस पे एक तो कैपिटल गेन नहीं होगा, दूसरा एग्रीकल्चरल लैंड पे नहीं होगा, तीसरा जो गुड्स, जो फर्नीचर, जो गोल्ड, जो ज्वेलरी अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदा है ना, उस पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा इफ यू सेल देम। और व्हाट वाज द फोर्थ वन जिस पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा? बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स, शेयर्स एंड राइट, इक्विटी शेयर्स एंड बॉन्ड्स पे आपको कैपिटल गेन नहीं देना है। तो दिस फोर थिंग्स जिसको आप कैपिटल एसेट में कंसीडर नहीं कर सकते हो और उसको पे कैपिटल गेन भी नहीं लगता है। कैपिटल गेन उसी पे लगता है जो कैपिटल एसेट है और उसको बेचने से आपको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अच्छा, अभी आता है कैपिटल गेन। किसको हम कैपिटल गेन बोलेंगे? सपोज मैंने जो परचेज किया है, जो लैंड है, हाउस है, उससे उसको सेल करने के टाइम पे मुझे उससे उसकी परचेज वैल्यू से जितना ज्यादा पैसा मिलता है, दैट इज माय कैपिटल गेन। बट ऑब्वियस ना, मैंने 10 लाख का प्लॉट खरीदा था, मुझे 10 लाख का प्लॉट अभी 50 लाख में बेच रही हूँ, तो मुझे 40 लाख का क्या हुआ? कैपिटल गेन। वो कैपिटल मैंने इन्वेस्ट किया था, उस पर मुझे गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। फ्लैट मैंने लिया था 25 लाख का, आज उसकी प्राइस 35 लाख से उसको बेच रही हूँ, 10 लाख मुझे क्या हो रहा है? कैपिटल गेन, राइट। सो दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल गेन। अभी ये जो कैपिटल गेन होता है उस पे लगता है आपको टैक्स, है ना। कैपिटल गेन जो चीज है उस पे लगता है आपको टैक्स, और वो टैक्स होते हैं दो टाइप के, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर गाइस। हम्म, profit realized from the sale and transfer within a year. Gain within a year is short term and more than a year is long term. 1 year का टाइम पीरियड है। अच्छा, हाँ, डिफरेंट एसेट्स के लिए डिफरेंट टाइम पीरियड है ना। डिफरेंट एसेट के लिए डिफरेंट टाइम पीरियड्स है। तो कौन कौन से एसेट्स होते हैं? एक तो होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना हमारा, एक तो होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। कौन कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी है? जैसे लैंड हो गया, आपका हाउस हो गया, आपका हैवी मशीनरी हो गई जो अटैच्ड है आपके बिजनेस में, राइट। तो रियल एस्टेट जनरली जो होता है हमारा घर है, वो हम आएगा इमूवेबल में। दूसरा होता है मूवेबल असेट्स, राइट। ऐसे असेट्स जो मूवेबल है, राइट, लाइक की आप क्या कंसीडर करोगे उसमें? गोल्ड हो गया, राइट, इंपॉर्टेंट ज्वेलरी हो गई, तो वो सब आता है मूवेबल में, राइट। तो इमूवेबल और मूवेबल के लिए डिफरेंट है। इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसको उसको अगर आप लेने के बाद 2 इयर्स में बेचते हो तो वो शॉर्ट टर्म है, और मोर देन 2 इयर्स में बेचते हो तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया जाएगा। अभी आप बोलोगे कि मैडम ऐसे डिवाइड क्यों करना है? क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए टैक्स इंपैक्ट अलग अलग है। यू ऑल नो दिस, राइट। टैक्स इंपैक्ट है वो अलग अलग है। तो शॉर्ट टर्म किसको बोला जाएगा? अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है और आप उसको 2 साल के लिए रखते हो परचेज करने के बाद, तो विद इन 2 इयर्स अगर आप 24 months इफ यू सेल it will considered into a short term capital gain, and if more than 2 years it will be considered as long term gain. I will again ask you people to make notes while I am speaking, right, क्योंकि ये आपको आज लिख के देना होगा, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग,
राइट। सो अगर वो प्रॉपर्टी जो आपकी है वो इमूवेबल है, लैंड बिल्डिंग या ऐसा हो गया, तो 24 मंथ्स का टाइम है। परचेज करने के बाद अगर आप विद इन 24 years इफ यू सेल इट, इट विल कंसिडर्ड एज शॉर्ट टर्म। मोर देन 24 years इफ यू सेल इट विल बी कंसिडर्ड एज लॉन्ग टर्म। देन आता है मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी में ये टाइम पीरियड हो जाता है 36 मंथ का, यानी कि इफ यू परचेज एंड यू सोल, you once you acquire the asset, and if you sell it within a 36 month, then you will have to pay short term capital gain, and if you sell it after 36 month, that is after 3 years, then it will be considered as long term gain. फिर शेयर्स और वो सब होते ये सब ये म्यूचुअल फंड थ्रू आपने जो शेयर्स में किया है उसके लिए होता है 1 ईयर का। कितना? 1 ईयर का। इक्विटी म्यूचुअल फंड है उसमें होता है 12 मंथ का, यानी कि 1 ईयर का। तो गेन विद इन अ ईयर इन इक्विटी म्यूचुअल फंड यू विल हैव टू पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मोर देन कैपिटल गेन 1 ईयर के बाद होगा। ठीक है, आई होप अभी तक आपको क्लियर है। हमने क्या क्या चीजें बात करी, हमने डिस्कस किया कैपिटल एसेट कौन कौन से है, कैपिटल एसेट को बेचने के बाद जो उसकी परचेज वैल्यू से एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है उसको बोलते हैं हम capital gain. Capital gain can be of two types, short term and long term. Immovable, movable and equity mutual fund क्या हमने different time देखा। अच्छा, अभी कैलकुलेशन कैसे करोगे आप कैपिटल गेन का? अभी तक तो हमने सोचा कि अच्छा कैपिटल गेन कब लगेगा, शॉर्ट टर्म कब लगेगा, लॉन्ग टर्म कब लगेगा, है ना। तो आपको ये समझ में तो आ गया कि कैपिटल गेन का टैक्सेशन है वो किस हिसाब से होगा। इट विल डिपेंड ऑन व्हाट, विच टाइप ऑफ असेट्स यू आर प्रोसेसिंग, राइट। वो कौन सा असेट है, इमूवेबल है, मूवेबल है या डेट म्यूचुअल फंड है, राइट। और आपने कितने टाइम तक उसको होल्ड करके रखा है, उसके हिसाब के आपका कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन होगा, राइट। तो आप अभी तक एनी डाउट इज देयर, एनी डाउट इज देयर? नो। एनी आइडिया कितना गेन लगेगा, कितना टैक्स लगेगा, आपको कुछ आइडिया है? एनी आइडिया अभी कैसे लगेगा कैपिटल गेन, आपको कुछ पता है? कितना टैक्स लगेगा, कितना परसेंटेज लगेगा? Have you ever studied this? आपको पता है कि आपका अगर लॉन्ग टर्म इक्विटी गेन हो रहा है, मतलब किसी प्रॉपर्टी को आप इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो आपने 2 साल से ज्यादा उसको होल्ड करके रखा है, 3 साल से ज्यादा उसको होल्ड करके रखा है, राइट। सपोज आई बॉट 1 हाउस फ्लैट टुडे एट 50 lakhs ऑफ रुपीज, है ना। आज मैं एक 50 लाख रुपए का हाउस परचेज करती हूँ, एक फ्लैट परचेज करती हूँ, एंड आई सेल इट इन 2025 एक्जैक्टली आफ्टर 5 years, है ना। तो वो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, और मैंने उसको उस पर मुझे गेन हो रहा है 10 लाख रुपए का। अगर वो 10 लाख रुपए जब मुझे मिले, है ना, उसके विद इन 1 year में अगर कैपिटल परचेज करने में या फिर लैंड या ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करने में उसको इन्वेस्ट कर देती हूँ तो मुझे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। आपको पता है वो, जैसे मैंने 25 लाख का फ्लैट लिया, वो मैंने 35 lakhs में बेचा तो 10 लाख का मुझे प्रॉफिट हो गया, और वो 10 लाख का मैंने एक नई प्रॉपर्टी खरीद ली, है ना। मैं बोलूंगी कि दैट प्रॉपर्टी वाज फॉर माय रेसिडेंशियल यूज, मैंने उसको बेच के नया रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदा है। इन दैट केस आई विल नॉट हैव टू पे अ सिंगल पेनी ऑफ टैक्स ऑन दोस इन्वेस्टमेंट्स। सो ऐसे होता है कि ये एक होता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको हो रहा है तो उसके विद इन अ ईयर जो कैपिटल गेन हुआ है उसको आप उसी प्रॉपर्टी में, उसी टाइप की प्रॉपर्टी में, यानी इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी में, इमूवेबल प्रॉपर्टी में आप उसको इन्वेस्ट करते हो, देन यू विल नॉट हैव टू पे टैक्स ऑन इट। And if you do not buy it or you do not invest it within a year, then you will have to pay tax on it, right? So that is what we wanted to discuss in investment tax, classification of investment tax.
short term and long term, right? Now we will discuss taxation for everything, like taxation for dividend, taxation for interest income, taxation for brokerage income, tax on business profit, tax on अदर इन्वेस्टमेंट, राइट? तो हमने ये एक पढ़ा कैपिटल गेन टैक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट में हमने पढ़ा एक कैपिटल गेन टैक्सेशन, राइट? अभी हम बात करेंगे टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रेट की, बट बिफोर दैट वन थिंग इज रिमेनिंग, दैट इज प्लानिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, राइट? प्लानिंग फॉर इन्वेस्टमेंट वो एक पूरा प्रोसीजर है, राइट? पूरा प्रोसीजर है प्लानिंग करने के लिए। आपको क्या लग रहा है कि आप टैक्सेशन का प्लानिंग कैसे करेंगे? सॉरी आप इन्वेस्टमेंट को प्लान कैसे करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? व्हाट यू विल डू फर्स्ट ऑफ ऑल, देखो आपको एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना है ना? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या होना चाहिए? किसी भी प्लान को एक प्लान बनाना है तो व्हाट यू नीड फर्स्ट ऑफ ऑल? आप ही आंसर दोगे, मुझे पता है, आपको पता है ना? अच्छा मेरे को एक चीज बताओ कि सबसे पहले द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू प्लीज कीप टेकिंग नोट्स, हाँ? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, किसी भी चीज का प्लानिंग करना है तो आपको कौन सी चीज की जरूरत है? आप प्लानिंग कहां से शुरू करोगे? किसी भी चीज का, हम इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बारे में बाद में बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट आपको एक प्लान बनाना है, कहां से शुरू होता है? व्हाट्स द फर्स्ट थिंग कम्स टू योर माइंड? आई वांट योर आंसर गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कैपिटल गेन टैक्सेशन पढ़ा, वो हमने कंप्लीट किया। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, किस चीज पे लगता है, कितना लगता है, राइट? शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है। कितना लगता है तो वो अपने उसी हिसाब से होता है कि आपकी इनकम कितनी है ना? अगर वो कैपिटल गेन आपके जो टैक्सेबल इनकम्स में आ जाती है तो वो इनकम इस हिसाब से आपका टैक्सेशन आगे लगेगा, राइट? तो हमें उतना ही जानना है कि कैपिटल गेन कितना है, क्योंकि टैक्सेशन के स्लैब्स विल रिमेन सेम। So that's how we are ending this topic here. And the next we are going to discuss this investment plan. We have how much time we are left with, Creamy? How much time are we left with? Yes. ट्वेंटी मिनट्स मैम। अच्छा। $20 we are left with. Okay. Good. Let us start understanding. अच्छा कुछ financial requirement 15%. अच्छा, I guess I missed this. What you were saying here? Money, income. You were saying for that investment income, right? Investment plan. अच्छा, तो if we plan investment, right? Investment plan क्या है कि हम चाहते हैं कि मेरे पास savings है and I wanted to invest in. तो when you want to invest into it, the first plan करना चाहते हो अभी, तो आपको क्या, आपके पास क्या होना चाहिए? इनकम होना चाहिए, ओके? इनकम आपके पास है, उसके बाद क्या होना चाहिए? फर्स्ट थिंग, प्लानिंग करते हैं तो पहले क्या होना चाहिए हमारे पास? एक ऑब्जेक्टिव, यस और नो? अभी मेरे पास पैसा है ना? अभी आई वांटेड टू मेक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे कि आप सोचो, I'll tell you my example, right? I got married at 25 years. Me and my husband now are married. तो अभी हम इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएंगे तो हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे ना पहले, राइट? कि हमें क्या करना है। फर्स्ट तो अवर लाइफ शुड बी सिक्योर्ड,
right? Our future, yani retirement should be secured. Then we should have our kids marriage, kids education planning, kids marriage planning, then retirement planning, right? So all of these are objectives. If I wanted to plan a retirement, my objective is future income, right? If my objective is a term like securing my life, then I want safety, right? If I want to invest for any future emergency, आज तो मैं 25 years की हूँ, 5 साल के बाद if I am not keeping well, or नहीं, I'll of course I'll keep well at 30 years, but if there is an emergency, I had some emergency requirement of money, at that time I will need liquidity, right? So first of all, in the investment plan, you will decide is investment objective. What you will decide? Investment objective. So what is your purpose? What is your objective? What you want in the future? सेफ्टी, इनकम, ग्रोथ, और सब हो सकता है, सबको सब चाहिए, सेफ्टी भी चाहिए, इनकम भी चाहिए, ग्रोथ भी चाहिए, और मुझे टैक्स एग्जम्पशंस भी चाहिए। तो मुझे 4 डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिसाइड योर ऑब्जेक्टिव, राइट? आप क्या करोगे? ऑब्जेक्टिव डिसाइड करोगे। उसके बाद व्हाट विल बी द नेक्स्ट? व्हाट विल बी द नेक्स्ट? What is next? आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, then what is the next? Risk appetite. Perfect, right? अभी उसके बाद you should know that how much risk can you take, right? How much risk can you take and how much return you want. So that risk return relationship should be established here. That I'm 25 year, I can take more risk. If I'm a 50 year and I'm making my investment plan, you cannot take a risk, right? देखो ये आपको काम आएगा, है ना? अगर आप फाइनेंशियल एडवाइजर बनते हो फ्यूचर में, then you will have to make an investment plan for your clients, right? So at that time you will need to know that what is his age, what is his requirement, right? How much his risk appetite. तो ये सारी चीजें आप अभी डिसाइड करोगे। तो पहले तो आप पूछोगे कि भैया आपका ऑब्जेक्टिव क्या है टू इन्वेस्ट इन, राइट? कि मुझे ऑब्जेक्टिव में ये भी हो सकता है ना, कोई आपको बोले कि आज से 10 साल के बाद आई शुड हैव 2 करोड़ ऑफ रुपीज, आई डू नॉट नो व्हाट यू विल डू, बट यू डू। मेरे पास 1 करोड़ आज इन्वेस्ट करने को है, मुझे 10 साल के बाद वो 2 करोड़ चाहिए, है ना? तो दैट्स व्हाट देयर ऑब्जेक्टिव माइट बी, राइट? तो वो ऑब्जेक्टिव हो गया ग्रोथ का, सेफ्टी का, लिक्विडिटी, इनकम, whatever objective is. उसके बाद you have to decide that how much objective से आपको पता चलेगा कि how much return you want and how much risk you can take, right? So second is risk return relationship establishment. First था deciding objective, second is risk relationship, return and risk relationship. How much is the risk appetite, how much return is expected by the person, राइट? सो हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, मैंने रिस्क रिटर्न का भी देख लिया कि इतना रिस्क हम ले सकते हैं। व्हाट इज द थर्ड स्टेप? व्हाट इज द थर्ड स्टेप? अब क्या करोगे? अब व्हाट यू विल डू नाउ? यू डिसाइडेड रिस्क ऑब्जेक्टिव, यस, suitable scheme, perfect answer, right? yes, स्कीम या प्लान करने के पहले आप क्या करोगे? एनालिसिस, राइट? यू विल डू सिक्योरिटी एनालिसिस। ऐसा मतलब नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप रियल एस्टेट में भी एनालिसिस इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका एनालिसिस करोगे कि रियल एस्टेट ने कितने साल में कितना रिटर्न दिया। गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे तो आपको गोल्ड का भी रिटर्न रिस्क पता है ना? आप रियल एस्टेट का देख लिए, गोल्ड लैंड का देख लिए, इक्विटी का देख लिया, डेट का देख लिया, म्यूचुअल फंड का देख लिया, पोस्ट ऑफिस में देख लिया, राइट? एग्रीकल्चरल लैंड का देख लिया, कहीं पे भी। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? सिक्योरिटी एनालिसिस। The first was objective, identifying objective. Second was risk and return trade-off establishment. Third is what? Third is what? Your security analysis. आपने वो बंदे का पूरा एनालिसिस कर लिया कि उसका रिस्क एपेटाइट क्या है, रिटर्न क्या है। उसके बेस पे आप सारी सिक्योरिटी को एनालाइज करोगे, आप देखोगे किसका रिटर्न कितना है, राइट? एंड देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट थिंग? व्हाट विल बी द नेक्स्ट थिंग? यू विल प्रिपेयर व्हाट? आपने क्या किया? आपने बंदे का रिस्क रिटर्न देख लिया, ऑब्जेक्टिव आपको पता है, सारी सिक्योरिटी का एनालिसिस भी कर लिया है आपने,
अभी आप क्या बनाओगे, आप क्या क्रिएट करोगे? What will you do next? The fourth step. Yes, exactly. एनालिसिस के थ्रू आपको पता पर चलेगा इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स का। एक बार आपको इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव पता चल गया तो आप बनाओगे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। So the fourth step is constructing a portfolio, constructing a bucket of investment for your clients or for yourself. Right? What you will do here, आपने पहले डिसाइड किया कि ऑब्जेक्टिव क्या है। आफ्टर दैट यू डिसाइडेड कि रिस्क रिटर्न एपेटाइट कितना है बंदे का, राइट? रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप का देखा कि इतना ही रिस्क ले सकते हैं, इतना रिटर्न चाहिए। बेस्ड ऑन दैट यू एनालाइज्ड द वेरियस सिक्योरिटी, वेरियस प्लान, वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल, वेरियस अल्टरनेटिव अवेलेबल्स। In fact, you discussed or you thought of all the investment avenues, राइट? इसीलिए हमने इन्वेस्टमेंट एवेन्यू इस इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में पहले पढ़ा। द फोर्थ इज कंस्ट्रक्टिंग अ पोर्टफोलियो, राइट? फोर्थ इज कंस्ट्रक्टिंग अ पोर्टफोलियो। यू विल कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो कि अगर उसकी रिक्वायरमेंट इतनी सेफ्टी, इतना प्रॉफिट, इतना ग्रोथ, इतना टैक्स एग्जेम्पशन है, तो 25% विल बी इन्वेस्टेड इनटू फिक्स्ड डिपॉजिट, सो उनका सेफ भी हो जाएगा उतना पैसा। 20% will be invested into a security which gives a growth, 10% investment for the income, or 25% maybe for tax exemption. So whatever portfolio, right, आप यहाँ पे weight decide करोगे कि कौन से investment avenues में कितना आप इन्वेस्ट करोगे और उससे कितना रिटर्न जनरेट होगा। तो यहाँ पे आप करोगे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। एंड द फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप इज पोर्टफोलियो एवेल्युएशन एंड रिवीजन। फोर्थ तक आपने क्या किया? पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया और इन्वेस्ट करवा दिया, है ना? बंदे को बोला कि आप इतना 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 इसमें इन्वेस्ट कर दो। एक साल के बाद आप क्या करोगे? पोर्टफोलियो को इवेल्युएट करोगे। एक साल भी हो सकता है, 4 महीने भी हो सकते हैं, 1 महीना भी हो सकता है। आप क्या करोगे कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उससे 1 मंथ में कितना रिटर्न आया, है ना? तो आप इससे आपका इवेल्युएट करोगे कि आपका जो नीड था, जो ऑब्जेक्टिव था, जो आपने स्टेप 1 में डिसाइड किया था और स्टेप 4 में आपने उसको इन्वेस्ट किया था, राइट? सो फिफ्थ स्टेज में आप डिसाइड करोगे, उस पोर्टफोलियो को इवेल्युएट करोगे कि जो मेरा ऑब्जेक्टिव था क्या वो मैंने मैच किया है ना? जो मेरा ऑब्जेक्टिव था उस हिसाब से मैं पैसे अर्न कर रहा हूं कि कर रही हूँ। अगर इफ यू आर गेटिंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांटेड टू और मोर देन दैट, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट इफ यू आर अंडर अर्निंग देन यू विल हैव टू डू व्हाट? देन यू विल हैव टू रिवाइज योर पोर्टफोलियो। आपकी पोर्टफोलियो में आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा। बट ऑब्वियस है ना? आप आपके पोर्टफोलियो में चेंज करोगे, उसको रिवाइज करोगे। तो ये हो गया आपका पूरा इन्वेस्टमेंट प्लान। कैसे करते हैं हम इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिसाइड करोगे व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, सेकंड रिस्क रिटर्न एपेटाइट देखोगे, थर्ड आप क्या देखोगे? सिक्योरिटी एनालिसिस करोगे, फोर्थ यू विल कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो, फिफ्थ पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन एंड पोर्टफोलियो revision. I hope you are clear with all these 5 points. I'm giving you 3 seconds, I'm taking 5 seconds pause. If you have any doubt, you may pop it up here in the chat box. Any doubt, please let me know.
Okay. So if there is no doubt, we can go ahead with this. I will end the session and I'll take your attendance. I'm sorry, I just left by mistake. Okay, I'll take your attendance. All of investment plan and capital gain is clear, right? Okay, let me take your attendance. I hope the screen is visible to you still. What is the date today? 11th Feb. Okay, Kajal, is she present? Kajal? Ma'am, screen is not visible. Haha, I'm just presenting. Kajal is present? I'm marking her absent. Kajal. Yash? Yash? Present, ma'am. Yash is present. Present, ma'am. Yeah. Viraj? Viraj? Vidya? Yes, ma'am. Viraj present. Vidya? Viraj present, ma'am. Yeah, Viraj is present. Kavita? Sneha? Sneha? Yes, ma'am. Yes. Yes. Yash Yes, ma'am. Agarwal? Yes, Yash ma'am. Agarwal? Yes, ma'am. Bhavya? 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 Chitra? Yes, ma'am. Charmi? Yes, ma'am. Chandni? Jai? Jai? Creamy? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ishita? Dhananjay? Yes, ma'am. Ruvi? Yes, ma'am. Shivangi? Yes, ma'am. Sagar? Yes. Leela? Yes, ma'am. Aditi? Yes, ma'am. Ashwini? Ashwini? Bhavya Kamdar? Yes, ma'am. Okay. I'm missing anybody, please let me know. Ma'am, Bhavya, 08. Bhavya कौन? Detharia? I'm not able to hear you. Ma'am, Bhavya, 08. Bhavya Detharia. Is present? Okay. Anyone else from this name is present? Let me know. Kajal, Kavita, Chandini, Ishita, and Ashwini. These 5 are marked as absent. Kajal, Kavita, Chandini, Ishita, Ashwini are marked absent. Do I need to change anything? Asha, recording of the lecture. Yes, Charmi. Whenever I do take attendance, I upload it on the portal. So you can get those recordings from the portal. So it is duly available there. And yes, it is there in YouTube channel as well. Yes, Viraj, I will upload PPT and lecture notes, everything by in this weekend. So tomorrow is Friday and Saturday. I will upload it by that time. Okay. Thank you very much. Have a nice day to all of you. You may start disconnecting yourself. Thank you, ma'am. Thank you, guys.